Hello everyone, myself Arun Sharma, PGT Physics from Cambridge International School, Dusua. Today we will start the next topic, mirror formula and linear magnification, and some text question of your NCERT book. First of all, we will recap the last topic we will study. In last topic, we will study about the formation of image by a concave and convex mirror. In my last video, we will study about image formation by concave and convex mirror. So first of all, in a concave mirror, there are 6 type of ray diagram in which object is situated on the different position. And in convex mirror, there are 2 type of ray diagram. For a concave mirror, there are only one ray diagram which is virtual and erect, and other the 5 ray diagram which is real and inverted. And for a convex mirror, the 2 ray diagram which is virtual and erect. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉनकेव में where should the object is placed for virtual and erect image. If the object is placed between pole and principal focus, then image is virtual and erect. There are 6 different positions. We can revise it again. First position P and F, second position on F, third position is on center of curvature and principal focus, fourth position at center of curvature, fifth position beyond center of curvature, sixth position is at infinity. So these are the 6 ray diagram for a concave mirror and 1 ray diagram which is virtual and erect. And for virtual and erect, the object is placed in between pole and principal focus of the mirror. The image is virtual and erect. And for a convex mirror, there are 2 type of ray diagram in which the 2 ray diagram which is virtual and erect. So कुछ points आपने याद रखने हैं. Your first point, few important points. Means first point, the height of the object is taken as positive. Yeah, it is always positive. Why it is positive? Because concave mirror, principal axis, this point pole. If the object is placed at AB, object is AB. अगर principal axis से ऊपर की तरफ distance note down करना है, it is always taken as positive. अगर downward note करेंगे then it is taken as negative. So your first point, height of the object is taken as positive, and your second point is the image, yeah, the height of the image is taken as positive for a virtual image. अगर if the image is virtual, then height of the image is always taken as positive.
अगर इस केस में इमेज वर्चुअल बनती है तो वर्चुअल ऐसे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, इट्स ए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO, इट्स ए हाइट ऑफ द इमेज HI। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव में आएगा और हाइट ऑफ द इमेज भी पॉजिटिव में आएगा। थर्ड पॉइंट, इफ द इमेज is real and inverted, then HI will be negative। अगर इमेज इन्वर्टेड बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड बनती है, देन इमेज इज टेकन एज नेगेटिव। अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट आती है, देन हाइट ऑफ द इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव। इट्स योर थर्ड पॉइंट। If the image is real, अभी बताया, if the image is real, then HI is negative and its magnification is also negative। ये रीड करेंगे अभी हम लीनियर मैग्निफिकेशन। If the image is virtual, then height of the image is positive and M is also taken as positive। अभी रीड करेंगे what is M mean, linear magnification। So move on the next topic। Your next topic is mirror formula। So you can remember what is a mirror formula। Mirror formula is the relationship between object U, image B and focal length F is called a mirror formula। Mean it is the relationship between object U, ऑब्जेक्ट को U के साथ डिनोट करेंगे, इमेज B एंड focal length F is called a mirror formula। and mirror formula is 1 upon U plus 1 upon B is equal to 1 upon F। it's a mirror formula। U for object, B for image, F for focal length। जब आप ग्रेड 12th में जाएंगे तो इसी रिलेशन को आपने प्रूव करना है बाय ए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। एंड इन ग्रेड 10th जस्ट यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला 1 upon U plus 1 upon B and 1 upon F। जब आगे जाके आप इसी चैप्टर में लेंस फॉर्मूला रीड करेंगे तो यहाँ पे -1 upon U plus 1 upon B is equal to 1 upon F। मिरर में प्लस आता है और लेंस में माइनस आता है। देन अगर आपको रे डायग्राम के लिए बोला है कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ मिरर फॉर्मूला फॉर ए कॉनकेव मिरर, इट्स ए कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, here principal focus, center of curvature and object is placed beyond center of curvature, it's AB। आपने रे डायग्राम भी ड्रॉ करा है इससे पहले कि देयर आर फिफ्थ रे डायग्राम, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे कट ऑन द प्रिंसिपल फोकस। थर्ड रूल, इंसिडेंट रे क्रॉस थ्रू द center of curvature and return back in a same path। Fourth rule, if incident ray strike on a pole with an angle, reflect with an same angle। Now here the three reflected ray meet, image is formed, image is real and inverted, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज छोटी है, मीन इमेज इज डिमिनिश्ड। अब आपने एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, इसको हाइट ऑफ इमेज। ये आपके पास ऑब्जेक्ट U, यहाँ पे इमेज बनी इट्स B एंड दिस वन इज द फोकल लेंथ F। ये आपके पास फोकल लेंथ है।
हाइट ऑफ, अभी पीछे बताया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव में आएगा। हाइट ऑफ द इमेज नीचे की तरफ है, मीन इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है, देन एच आई इज नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन एज पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज इज टेकन एज नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट वन, लीनियर मैग्निफिकेशन। linear magnification. So linear magnification is denoted by m, small m. It is the ratio of height of the image height of the object, height of the object, mean hi upon ho is equal to minus b upon u, mean hi upon ho is equal to minus b upon u. फॉर एग्जाम्पल आपने ये फॉर्मूला बन रहा है, अगर यहां से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, सपोज इट से 5 सेंटीमीटर, आपको बोला गया है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज, देन योर फॉर्मूला इज hi is equal to minus b upon u multiply by ho, height of the object. So next वीडियो में हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन के ऊपर। पर इन के न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले हमारे को कुछ और रूल समझने पड़ेंगे, उनको बोलते हैं द साइन कन्वेक्शन फॉर ए स्फेरिकल मिरर। सो first of all you can remember mirror formula and the formula of linear magnification. In mirror formula 1 upon u plus 1 upon b is equal to 1 upon f, and its linear magnification m is equal to minus b upon u. अगर जस्ट पूछा है मैग्निफिकेशन तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी अपॉन यू। अगर पूछा है हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो next is sine spherical mirror। आगे आपने लेंस के बारे में भी रीड करने हैं, यही फॉर्मूले, जस्ट वन जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें चेंज है। देयर आर 3 रूल टू इम्प्लीमेंट इन टू कैलकुलेट द image of the object, to calculate the focal length, to calculate the linear magnification. It means your first point is all the distance measured from pole. It means कोई भी डिस्टेंस नोट डाउन करना है आपने, कहां से नोट डाउन करेंगे, पोल से। प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। कोई भी डिस्टेंस, चाहे आपने लेफ्ट हैंड साइड को नोट डाउन करना है चाहे राइट हैंड साइड को नोट डाउन करना है, कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, कहां से कैलकुलेट करेंगे, पोल से। सेकेंड पॉइंट, द डिस्टेंस taken along incident ray taken as positive, but in opposite direction taken as negative, मीन्स जिस साइड को इंसिडेंट रे चल रही है उस साइड को डिस्टेंस नोट डाउन करेंगे पॉजिटिव, उसके अपोजिट नोट करेंगे नेगेटिव। जैसे आपको पता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इंसिडेंट रे इट्स ए प्रिंसिपल फोकस। अगर मैंने रे इस साइड को चल रही है, अगर पोल से राइट साइड को डिस्टेंस कोई भी कैलकुलेट करना है तो पॉजिटिव। जैसे अभी हमने पढ़ा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज,
वर्चुअल के लिए जो इमेज बननी थी बी बनना था वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। u इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, u हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में। क्यों, बिकॉज द डिस्टेंस टेकन अलोंग इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव बट इन अपोजिट डायरेक्शन टेकन एज नेगेटिव। इज इट क्लियर? नाउ मूव ऑन थर्ड पॉइंट, द डिस्टेंस taken upward from the principal axis taken as positive but in downward direction taken as negative। मीन्स अगर आपने प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है पॉजिटिव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड नीचे की तरफ डिस्टेंस नोट डाउन करना है नेगेटिव। मैथ वाला ही कंसेप्ट है, इट्स योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस पॉइंट इज पोल। अगर राइट साइड को डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पॉजिटिव, अगर लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ डिस्टेंस निकालेंगे पॉजिटिव, नीचे की तरफ डिस्टेंस निकालेंगे नेगेटिव। तो जब आगे आपने कोई भी रूल या कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो आपको ये तीनों फॉर्मूले वहां पे अप्लाई करने हैं। वहीं पे नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस आएगा। अगर ये फॉर्मूले अच्छी तरह अप्लाई नहीं करोगे तो योर न्यूमेरिकल इज रॉन्ग। सो कुछ आपको जो हमने रे डायग्राम अभी रीड करी है उनके बारे में ये तीनों साइन कन्वेक्शन लगा के बताता हूं कि आपने कैसे लगाना है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट इमेज पढ़ी, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट पोल, प्रिंसिपल फोकस, पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूं मैं P और F के मिड में। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट्स योर A, B, A dash, B dash। इट्स योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। इसको ऑब्जेक्ट U बोलेंगे, ये इमेज बनी B बोलेंगे, ये आपकी फोकल लेंथ F बोलेंगे। नेक्स्ट, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, दोनों रे डायग्राम रीड करी हुई है। तो इट्स योर ऑब्जेक्ट U, यहाँ पे इमेज बन रही है B और यहाँ पे फोकल लेंथ है F। अब जो हमने तीन फॉर्मूले पढ़े उनको अप्लाई करना है। यहाँ पे इस केस में इमेज आ रही है वर्चुअल और इरेक्ट, इस केस में इमेज आ रही है रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। फर्स्ट केस में वर्चुअल और इरेक्ट। अब देखो रे इस साइड को चल रही है, यू भी फर्स्ट पॉइंट था कि कोई भी डिस्टेंस नोट डाउन करना है, कहां से नोट डाउन करना है हमने, पोल से, ये पोल। सेकंड पॉइंट था जिस साइड को इंसिडेंट रे चल रही है उस साइड को डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं पॉजिटिव, उसके अपोजिट कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव। थर्ड पॉइंट था प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड, ऊपर की तरफ डिस्टेंस नोट डाउन करेंगे पॉजिटिव, अगर नीचे की तरफ डिस्टेंस नोट करेंगे नेगेटिव। अब इस केस में अब पहले तो ये याद रखना है कि u इज ऑलवेज टेकन एज अ नेगेटिव फॉर रियल और वर्चुअल इमेज, चाहे कोई भी इमेज हो,
चाहे आपकी रियल इमेज हो चाहे वर्चुअल इमेज हो, यू इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव फॉर ए कॉनकेव मिरर, फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, चाहे वो मिरर्स है चाहे वो आपके लेंसेज है, यू इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। अब यू इस केस में नेगेटिव का है, इमेज वर्चुअल है, बी किसका है पॉजिटिव का, फोकल लेंथ भी इस साइड है, एफ किसका है नेगेटिव का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्स से ऊपर की तरफ है, एच ओ इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, एच आई ये भी किस में आएगा पॉजिटिव में क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है। इस केस में देखो u भी इस साइड है, b भी इस साइड है, इंसिडेंट रे के अपोजिट है, f भी इस साइड है, इट मींस u इज नेगेटिव, b इज नेगेटिव, f इज नेगेटिव, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, एंड हाइट ऑफ द इमेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन नेगेटिव। तो जब तक आपको ये साइन कन्वेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तो आपका न्यूमेरिकल कभी भी सही नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या है आपका, जब इस चैप्टर को रीड करेंगे सबसे पहला काम है रूल टू ड्रॉ द इमेज बाय ए स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट पॉइंट था आपने रूल अंडरस्टैंड करने हैं कि स्फेरिकल मिरर को की रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको कौन कौन से रूल अप्लाई करने, देयर आर 4 टाइप ऑफ रूल। उसके बाद रीड करना था आपको रे डायग्राम कि आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करी अलग अलग पोजीशन के ऊपर, उनके ऊपर इमेज आई रियल और वर्चुअल। जब आपको रियल और वर्चुअल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपने मिरर फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन ये नोट डाउन करना है। जब आपको मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन क्लियर है उसके बाद आपने ये 3 साइन कन्वेक्शन, फर्स्ट ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ए पोल, सेकंड द डिस्टेंस टेकन अलोंग इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव but in opposite direction taken as negative, and your third rule the distance taken upward from the principal axis taken as positive and in downward direction taken as negative. So you can try your NCERT book of page number 168. There are 4 questions of blue portion. First question, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था जी कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। सो यू नो कॉनकेव इज ए कॉन्वर्जिंग एंड कॉन्वेक्स इज ए डाइवर्जिंग मिरर। यहां से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि विच मिरर इज कॉन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। सो यू कैन रिमेंबर कॉनकेव मिरर इज ए कॉन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स इज ए डाइवर्जिंग मिरर। So what is the principal focus of a concave mirror? If incident ray parallel to the principal axis reflected ray meet on the principal focus, that is called F or principal focus, and concave is a converging mirror. Second था, second question है जी उसमें कि if the radius of curvature in text 168 page number. Second question, the radius of curvature is 20 centimeter. Find the focal length of the spherical mirror. So your relation is F is equal to R divided by 2. Then F is equal to 20 divided by 2 is equal to 10 centimeter. Your second question. Third question है उसमें कि which mirror form a virtual and इन लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर है जो वर्चुअल, इरेक्ट और इन लार्ज इमेज बनाता है? कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और कब, कौन से केस में, 2 या 3 बार बता चुका हूं, कौन से केस में वर्चुअल इमेज बनाता है? जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं P और F के मिड में, तब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट छोटा होता है और इमेज बड़ी बनती है। और इसमें फोर्थ क्वेश्चन ये था कि why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in a vehicle? व्हीकल में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है इट फॉर्म ए वाइडर व्यू ऑफ द फील्ड, अलाउ टू ड्राइव टू सी द मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड देम। तो उसमें जो बैक साइड का व्यू है वो बताता है, जिसके कारण आप उसको अच्छे से नजदीक देख पाते हो। तो ये थे। नेक्स्ट टाइम हम जो मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन है इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया आपने क्या क्या अंडरस्टैंड करना है। रूल
टू ड्रॉ रे डायग्राम, सेकेंड इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन पता होना चाहिए आपको कैसा इमेज बन रहा है, रियल है, वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है। थर्ड वन साइन कन्वेक्शन, साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर। फोर्थ वन मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। एंड फिफ्थ वन लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। मैं आपको यही क्यों बता रहा हूं, बाकी का पोर्शन क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये सभी पांचों की पांचों चीजें जो है एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आप इनमें से एक भी पॉइंट कोई मिस करोगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दीज टर्म्स, दीज 5 टर्म्स। एंड अगर आपको ये पांचों की पांचों पॉइंट्स क्लियर है तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें जो आपका सीबीएसई एग्जाम है, यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स में और टाइप में, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है। रे डायग्राम में से भी आ सकता है और मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले के ऊपर 101 न्यूमेरिकल आता ही आता है। सो थैंक यू, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो।